آج ویو 360 میں تمام آثار بتاتے ہیں کہ طالبان دہشت گردوں کو پناہ دینا جاری رکھیں گے۔ CIA کے سابق ڈائریکٹر لیون پنیٹا کی افغانستان کی صورتحال پر وائس آف امریکہ سے خصوصی گفتگو۔ All of the signs point to the fact that they're going to continue to provide a safe haven for terrorism. کشمیر میں گلیشیئرز کے پگھلنے میں تیزی، پاکستان اور بھارت میں خوراک کی پیداوار کیسے اثر انداز ہو سکتی ہے؟ پچھلے سال گرمی زیادہ بڑھی، 50% سبزی ختم ہو گئی۔ اور مفلوج لوگوں کو صرف سوچ کی طاقت سے لکھنے اور دوسرے کام کرنے میں مدد دینے والی ٹیکنالوجی کیسے کام کرتی ہے؟ جانیے آج کے شو میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ویو 360 کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل۔ افغانستان کے سابق صدر حامد کرزئی نے کہا ہے کہ افغانستان میں طالبان کی موجودہ حکومت کو عالمی سطح پر قبولیت سے پہلے ملک میں قانونی حیثیت درکار ہوگی۔ وائس آف امریکہ کو دیے گئے خصوصی انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ طالبان حکومت کو قانونی حیثیت صرف افغانستان کے عوام کی خواہش کے اظہار کے ذریعے ہی مل سکتی ہے، آیا وہ انتخابات ہوں یا لویا جرگہ کا انعقاد ہو۔ افغانستان کے مختلف سیاسی، عسکری اور سماجی تنظیموں کے لگ بھگ 3000 اراکین پر مشتمل لویا جرگہ کو افغانستان کے اہم فیصلوں اور تنازعات کے حل میں اہمیت حاصل رہی ہے۔ امریکہ کے سابق وزیر دفاع اور سابق CIA ڈائریکٹر لیون پنیٹا نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا ہے کہ اگر طالبان افغانستان میں دہشت گردی کی حمایت کرتے ہیں تو ان کی حکومت کو تسلیم کرنا امریکہ کے لیے بہت مشکل ہوگا۔ ہماری ساتھی مونا کاظم شاہ نے ان سے پوچھا کہ امریکی حساس اداروں اور وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ القاعدہ 6 مہینوں میں امریکہ پر حملے کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ آپ کے خیال میں یہ خطرہ جو ہے کتنا حقیقی ہے اور امریکہ کو اس معاملے میں کیا کرنا چاہیے؟ So we know from history that the Taliban allowed القاعدہ۔ تاریخ سے ثابت ہوتا ہے کہ طالبان نے افغانستان میں نہ صرف القاعدہ کو خود کو مضبوط کرنے کا بلکہ انہیں امریکہ پر حملوں کی منصوبہ بندی کا موقع بھی دیا۔ اگر طالبان اب القاعدہ کو یہ اشارہ دیتے ہیں کہ انہیں افغانستان میں محفوظ ٹھکانہ میسر ہوگا اور چونکہ القاعدہ کا بنیادی مشن امریکہ پر حملہ کرنا ہے تو طالبان کی جانب سے موقع دیے جانے پر القاعدہ فوری طور پر نہ صرف اپنی تعبیر نو کا عمل شروع کرے گا بلکہ مستقبل کے حملوں کے لیے منصوبہ بندی بھی۔ For future attacks. So this means that القاعدہ، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ انہیں صرف دوبارہ منظم ہونا ہے۔ امریکہ وہاں 20 سال رہا، آخر ان 20 سالوں میں وہ القاعدہ کو ختم کیوں نہیں کر سکا؟ Well, we obviously went after القاعدہ۔ ہم نے واضح طور پر القاعدہ اور القاعدہ کی قیادت کا پیچھا کیا اور ہم اس میں کامیاب رہے۔ آخرکار ہم بن لادن کے پیچھے بھی گئے اور کامیابی سے بن لادن کو کیفر کردار تک پہنچانے میں کامیاب رہے۔ اب القاعدہ کو اپنے آپ کو دوبارہ تعمیر کرنے، دوبارہ منظم کرنے اور مستقبل کے حملوں کی منصوبہ بندی کرنے کا موقع ملے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ 3 سے 6 ماہ کی مدت کا اندازہ درست ہے کہ اس دوران افغانستان سے امریکہ پر ایک اور حملہ کیا جا سکتا ہے۔ Another attack coming out of Afghanistan in that period. So the US has been there in the region for 20 years. امریکہ اب وہاں اوور دا ہورائزن انٹیلیجنس مشن کا ارادہ رکھتا ہے، لیکن اب تک وہ خطے کے پڑوسی ممالک کو اس بارے میں اپنے ساتھ ملانے میں کامیاب نہیں ہو پایا۔ آپ کے خیال میں ایسا کیوں ہے؟ It's a difficult challenge and I think یہ ایک چیلنج ہے۔ ایک طرف ایران ہے، وہ ہمیں موقع نہیں دیں گے، دوسرا ملحقہ ملک پاکستان ہے، لیکن پاکستان کے طالبان کے ساتھ تعلقات ہیں اور اس وقت پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کچھ اچھے نہیں ہیں، لہٰذا ہمیں پاکستان میں کوئی اڈا نہیں مل سکتا۔ افغانستان کے شمال میں دوسرے ممالک ہیں لیکن وہ روس کے زیر اثر ہیں، اور سب اس بات پر منحصر ہوگا کہ روس امریکہ کو ایسا کرنے کی اجازت دینے پر راضی ہے یا نہیں۔ چنانچہ امریکہ کو بحر ہند میں کسی طیارہ بردار بحری جہاز سے یا ان ممالک سے لمبا فاصلہ طے کرنا پڑے گا جو ہمیں بوقت ضرورت کارروائی کی اجازت دیں گے۔ یہ ہماری فوری کارروائی کی صلاحیت کو بری طرح متاثر کرتا ہے، اور جب آپ کسی دہشت گرد ہدف کی شناخت کر لیتے ہیں تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ جلد اس کے خلاف کارروائی کی جائے، تو امریکہ کو دہشت گردوں کا پیچھا کرنے کے حوالے سے دشواریوں کا سامنا ہوگا۔ in terms of being able to go after terrorists. The US has agreed on providing humanitarian aid. امریکہ نے طالبان حکومت کو تسلیم کیے بغیر افغانستان کو انسانی امداد فراہم کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس امداد سے ہم طالبان حکومت کو تسلیم کرنے کے ایک قدم اور قریب ہیں؟ I think it would be
तालिबान अगर अफगानिस्तान में दहशत गर्दी की हमायत करते रहे तो उनकी हुकूमत को तस्लीम करना अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल होगा। मेरे ख्याल से तालिबान अगर अमेरिका से ये उम्मीद रखते हैं तो उनके लिए ऐसी शराइत होनी चाहिए जिनमें ये वाज़ेह किया जाए कि वो अपने मुल्क को दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे और उसे रोकने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। a Taliban government in Afghanistan. How do you see आप खित्ते में अमेरिका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात का कैसा रुझान देखते हैं? Well, it's, the competition between the United States and China. अमेरिका और चीन के दरमियान मुसाबकत आपको मुख्तलिफ शक्लों में अफगानिस्तान में दिखाई देगी। चीन तालिबान हुकूमत के साथ ताल्लुकात उस्तवार करने की कोशिश इसलिए कर रहा है क्योंकि वो अफगानिस्तान के मादनी वसाइल में दिलचस्पी रखते हैं। ये एक चीज है जो अफगानिस्तान के पास है। चुनांचे चीन बेहतर ताल्लुकात उस्तवार करने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। मेरे ख्याल में पाकिस्तान ये कोशिश करेगा कि अमेरिका तालिबान की हुकूमत के साथ बेहतर ताल्लुकात रखे, मगर पाकिस्तान को खुद मुल्क के अंदर मौजूद तालिबान की दहशतगर्द कार्रवाइयों के बारे में तशवीश है जो उनकी हुकूमत को कमजोर कर सकती है। अमेरिका, चीन और पाकिस्तान कोई भी इस वक्त मुस्तकबिल का अंदाजा नहीं लगा सकता। And I don't think any of them really know. How do you see अगर खित्ते की सियासत देखी जाए तो मुस्तकबिल में दो में से एक अफगानिस्तान उभर कर निकलेगा। एक वो अफगानिस्तान जो दहशत गर्दी का मुखालिफ हो या फिर वो अफगानिस्तान जहां दहशत गर्दी फले फूले। इन दोनों सूरतों में आप आने वाले वक्तों में इलाकाई सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं? You've asked the most important question. आपने सबसे अहम सवाल पूछा है कि अब इस खित्ते में क्या होगा, और मुझे लगता है कि इसका इन्हिसार इस बात पर है कि क्या इस वक्त अफगानिस्तान पर हुकूमत करने वाले तालिबान वही तालिबान हैं जो 9/11 में अफगानिस्तान पर हुकूमत करते थे। अगर वो वही रहते हैं तो उनकी हुकूमत ईरान या शुमाली कोरिया जैसी होगी जो खित्ते पर मनफी असरात डालेगी। पाकिस्तान, भारत, अमेरिका या चीन को वाकई मालूम नहीं है कि तालिबान की हुकूमत गैर कानूनी हुकूमत बनने वाली है या ये ऐसी हुकूमत बनने वाली है जो दूसरे ममालिक से ताल्लुकात रखने की कोशिश करती है। Relate to other countries in the region. खुराक का आलमी दिन हर साल 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस अहम दिन की मुनासबत से आज से हम आपके लिए खुसूसी रिपोर्ट्स पेश कर रहे हैं। आगाज़ करते हैं आबी वसाइल से जो खुराक की पैदावार को बराह रास्त मुतासिर करते हैं। पानी ज़्यादा हो तो सैलाब खेतों को तबाह कर देते हैं, कम हो तो पैदावार को नुकसान पहुँचता है। हिमालयी खित्ते में ग्लेशियर्स तेज़ी से पिघल रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के दरमियान पानी की तकसीम एक अहम मसला है जो माहिरीन के मुताबिक मज़ीद बिगड़ सकता है। इंसानी मुदाखलत ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह करार दी जा रही है। आइए इस तब्दीली के मुख्तलिफ पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं जो माहौलियाती और सियासी दोनों लिहाज से अहम इस खित्ते को मुतासिर कर रहे हैं। श्रीनगर से जुबैर डार की रिपोर्ट। इस वक्त मैं थाजवास ग्लेशियर के पास खड़ा हूँ। ऐसे ही कई और ग्लेशियर कश्मीर के तूलो अर्ज़ में अजीम बर्फ़ानी ज़खायर की सूरत में हमारे लिए पानी के वसाइल मुहैया करते हैं, जिस पर हमारी ज़राअत, बिजली और पीने के पानी का इन्हिसार है। मगर माहिरीन माहौलियात का कहना है कि थाजवास ग्लेशियर पिछले 3 साल से 17 मीटर फ़ी साल के हिसाब से सुकड़ रहा है, जो एक बड़े ख़तरे की तरफ इशारा करता है। माहिरीन के मुताबिक हिमालयाई खित्ते में सैकड़ों ग्लेशियर मौसमियाती तब्दीली या क्लाइमेट चेंज की वजह से पिघल रहे हैं। सैटेलाइट डेटा मैपिंग से जाहिर होता है कि यहाँ 1980 के बाद से 6 ग्लेशियर तकरीबन गायब हो चुके हैं। इस खित्ते में ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं और उनकी गहराई हर साल 1 मीटर के करीब कम हो रही है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुस्तकबिल में निस्फ सदी के बाद इस खित्ते में पानी की कमी का मसला खौफनाक सूरत हाल को जन्म देगा। हिमालय के खित्ते में 14,000 के करीब छोटे बड़े एल्पाइन ग्लेशियर्स की निशानदी हो चुकी है। इसमें भारत और पाकिस्तान के जेर कंट्रोल कश्मीर के दोनों हिस्से शामिल हैं। शुमाल मशरकी हिंदुस्तान से लेकर अफगानिस्तान तक पूरे खित्ते में यहाँ सबसे ज्यादा ग्लेशियर हैं। एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि ग्लेशियर्स का पिघलना बहुत जल्दी हो रहा है। उनका जो पिघलने का जो तरीका है वो ऐसा है कि उसको प्रिडिक्ट कर पाना मुश्किल हो रहा है। तो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि किस साल में, अगले आने वाले 10, 15, 20 सालों में कितना पानी हमारी नदियों में होगा। तो अगर अनप्रेडिक्टेबिलिटी रहेगी तो हर देश ये चाहेगा कि वो जितना पानी ज्यादा रोक सके उतना रोके। और हम जानते हैं कि इंडिया पाकिस्तान में बहुत सारे रिवर्स हैं जो जिनका शेयरिंग होता है वाटर रिसोर्सेज का।
تو ان کے جب ڈبیٹس ہوں گے, ڈسکشنز ہوں گے, تو ہم اس انپریڈکٹیبلٹی کو وہاں بھی دیکھیں گے اور ہم اس کو ایک کانفلکٹ میں تبدیل ہوتے ہوئے دیکھ پائیں گے. برف اور گلیشیئر کے ذخائر میں کسی بھی تبدیلی کا زراعت پر اثر ابھی سے نظر بھی آ رہا ہے. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں کسان دھان کے کھیتوں کو سیب کے باغات میں بدل رہے ہیں. زمین میں پانی کا مسئلہ ہو گیا ہے, فصل صحیح طریقے سے اگتی نہیں ہے, پولوشن بڑھ گیا. پہاڑوں پر برف ہوتی تھی, وہ آہستہ آہستہ پگھلتی تھی, پانی پورے 12 مہینے ملتا تھا. پچھلے سال گرمی زیادہ بڑھی, 50% سبزی ختم ہو گئی. اس سال دھان کی فصل میں 50% نقصان ہوا. بھارت اور پاکستان میں آبادی کی اکثریت کا انحصار زراعت پر ہے. پانی کے کنٹرول پر دونوں میں مسلسل کشیدگی ہے. ماہرین کی نظر میں صورتحال کو ابھی انتہائی سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے. سیاچن کی ہم بات نہ کریں, جتنے بھی گلیشیئرز ہیں پوری دنیا میں, ان میں اگر کوئی بھی فوجیں رہیں گی, ان میں اگر کوئی بھی ٹورزم ہوگا بہت ادھک میں, تو اس کا پگھلنا جائز ہے. اس میں اس کا جو امپیکٹ ہے وہ دکھنے کو ملے گا. اگر آج دونوں دیشوں نے جھگڑا بند نہیں کیا تو نہ صرف یہ جھگڑا بڑھے گا, وہ تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں, بٹ ہمارا جو سروائیول ہے, جو ہمارے جو 2 دیش ہیں ان میں جو پانی کی جو ریسورسز ہیں اس میں جو سسٹینیبلٹی ہے وہ بھی امپیکٹ ہوگی. تو آج ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ہم آئی تھنک موڈ پہ پہنچ چکے ہیں کہ ہمیں اس جھگڑے کو ختم کرنے کی ضرورت ہے, نہ صرف بیکاز آف ایتھیکل اینڈ ہیومن رائٹس ریزنس, بٹ آلسو بیکاز آف انوائرمنٹل ریزنس. تحقیق بتاتی ہے کہ سن 2050 تک انسانی سرگرمیوں کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات جنوبی ایشیا میں 6 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو نقل مکانی پر مجبور کر سکتے ہیں, اور وہ وقت زیادہ دور نہیں. زبیر ڈار, وائس آف امریکہ, سری نگر. جاپان میں سائنسدانوں نے اپنے ملک کی گائے کی ایک خاص نسل واگیو کے گوشت کی نقل لیبارٹری میں تیار کی ہے. جاپان کی اوساکا یونیورسٹی کے سائنسدانوں کی ایک ٹیم نے 3 ڈائمینشنل یا 3D بائیو پرنٹنگ ٹیکنالوجی کی مدد سے گوشت کا یہ متبادل تیار کیا ہے. پروفیسر میچو تاسو کی ان کی تحقیقی ٹیم نے سب سے پہلے کالے رنگ کی مخصوص جاپانی گائے کی خلیے نکالے اور پھر کسی مشین کی مدد کے بغیر ریشوں کو اکٹھا کیا, جس کے بعد 3D بائیو پرنٹنگ ٹیکنالوجی کی مدد سے گوشت کا ایک ٹکڑا بنایا. اگرچہ پروفیسر ماسو ساکی اور ان کی ٹیم امید کر رہی ہے کہ اس قسم کا گوشت قدرتی گوشت کا زیادہ پائیدار نیم البدل ہو سکتا ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اقدام مستقبل میں خوراک اور پروٹین کی قلت دور کرنے میں مدد کر سکتا ہے. بہرحال ابھی اس کے ذائقے اور مارکیٹ میں دستیابی پر کوئی بات سامنے نہیں آئی. اپنی ساخت اور ذائقے کے باعث واگیو بیف کا شمار جاپان میں انتہائی مہنگی غذا میں کیا جاتا ہے. اس وقت لیبارٹری میں واگیو کا 1 گرام کا ٹکڑا تیار کرنے پر تقریباً $89 کی لاگت آ رہی ہے. تاہم سائنسدانوں کو امید ہے کہ اس تجربے کی کامیابی کے بعد ملک میں اس قسم کے گوشت کو بڑے پیمانے پر تیار کیا جا سکے گا, جس سے اس کی قیمت میں کمی آئے گی. اور دنیا بھر سے اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر. facebook.com/VOA Urdu, ٹویٹر پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa. تازہ ترین خبریں, اہم واقعات, آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھیں, سنیں اور پڑھیں. VOA اردو کی اسمارٹ فون ایپ پر خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں. روس کی حمایت یافتہ شامی حکومت کی افواج نے حال ہی میں باغیوں کے آخری گڑھ ادلب شہر پر حملوں میں اضافہ کر دیا ہے. وہاں شامی فوج پر قبضے کے لیے تیار کھڑی ہیں, مگر اس میں رکاوٹ وہاں کی موجود ترک فورسز ہیں. ادلب پر شامی فوج کی کارروائی کے نتیجے میں مزید لاکھوں لوگ ترکی کی جانب ہجرت کر سکتے ہیں. تفصیلات اس رپورٹ میں. روس کی حمایت یافتہ شامی حکومت کی افواج ادلب پر اپنے حملے تیز کر رہی ہیں. شام کے صدر بشار الاسد باغیوں کے زیر کنٹرول علاقے کو دوبارہ حاصل کرنے کا وعدہ کر رہے ہیں, جو لاکھوں مہاجرین کا گھر ہے. فی الحال ادلب میں ترکی کی مسلح افواج بشار الاسد کے ہدف کی راہ میں ہیں, اور تجزیہ کاروں نے خبردار کیا ہے کہ صورتحال روز بروز زیادہ مخدوش ہو رہی ہے. اس میں بہت سے خطرات ہیں. شامی افواج کے ساتھ براہ راست تصادم کا خطرہ, جس میں روسی مسلح افواج کے عناصر بھی شامل ہیں. اس کے علاوہ نام نہاد ادلیب امارات کے حامیوں کے ساتھ تنازع کا خطرہ, جو ادلیب کے علاقے کو کنٹرول کر رہے ہیں.
पिछले साल इदलिब में एक फजाई हमले में 33 तुर्क फौजी मारे गए थे, जिनका इल्जाम बागियों ने शाम की फिजाइया पर आयद किया था। इदलिब में तुर्की की अस्करी मौजूदगी तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और उनके रूसी हममनसब व्लादिमीर पुतिन के दरमियान तय पाने वाले मुआहदे का हिस्सा है। लेकिन रूसी हुकूमत ने अंकारा पर इल्जाम आयद किया कि वो इदलिब को भारी हथियारों से लैस इंतहा पसंद जहादी ग्रोहों से पाक करने के अपने मुआहदे को पूरा करने में नाकाम रहा है। तुर्की ने हाल ही में इदलिब में अपनी फौजी मौजूदगी को मजबूत किया है। तुर्की की हिज़्ब इख्तिलाफ खबरदार कर रही है कि इदलिब में किसी भी हमले से एक इंसानी बहरान का खतरा है। The civilian population feels that such an attack is coming from the Syrian army. जब शहरी आबादी महसूस करेगी कि इस तरह का हमला शामी फौज की तरफ से हो रहा है जिसे रूसी फजाइया की मदद हासिल है, तो गालिबन फिर आम शहरी पनाह की तलाश में शुमाल की तरफ जाएंगे और यकीनन ये पनाहगज़ीनों की एक नई लहर का बाइस बनेगा जो तुर्की की सरहद पर संगीन दबाव डाल सकता है। हमें सिक्योरिटी के खतरे का सामना है। तुर्की पहले ही तकरीबन 50 लाख पनाहगज़ीनों की मेज़बानी कर रहा है, जिनमें से बेशतर शाम की खना जंगी से फरार होकर आए हैं। मुहाजिरीन की एक और लहर के खदशे के पेश नज़र तुर्की की हिज़्ब मुखालिफ की बड़ी जमातें हुकूमत से दमिश्क के साथ मुज़ाकरात शुरू करने का मुतालबा कर रही हैं। ताहम इस मुतालबे को तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान मुस्तरद कर चुके हैं। इसकी बजाय रजब तैयब एर्दोगान सदर पुतिन के साथ अपने ताल्लुकात पर नजर रखे हुए हैं। तज्जियाकारों का ख्याल है कि इदलिब के बारे में मौजूदा कशीदगी से रूसी सदर को फायदा होगा। 6 साल के वक्फे के बाद बशार अल असद अचानक एक माह पहले आधी रात को मॉस्को पहुंचे और पुतिन के साथ बराह रास्त मुलाकात की और इसके फौरन बाद सदर एर्दोगान सूची गए। एक तरह से पुतिन तासुर देते रहे कि वो किंग मेकर हैं, कि वो एर्दोगान और बशार अल असद दोनों पर रूस और सिर्फ रूस के मफादात की खातिर दबाव डाल सकते हैं। इसी वजह से कुछ माहिरीन पेशगोई कर रहे हैं कि अंकारा और दमिश्क दोनों पर रूस का असर व रसूख बरकरार रखने के लिए व्लादिमीर पुतिन इदलिब के मामले पर एक और समझौते की सालसी कर सकते हैं। डोरियन जोन्स के साथ नदीम याकूब, वॉइस ऑफ अमेरिका। अमेरिका में जहां एक तरफ आबादी के इन तबकों को वैक्सीन लगवाने की तहरीक दी जा रही है जिन्होंने अभी तक टीके नहीं लगवाए, दूसरी जानिब अमेरिका भर के 70 से ज़्यादा चिड़ियाघरों के जानवरों को भी कोरोना वायरस से बचाव के लिए वैक्सीन देने की तैयारी की जा रही है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अमरीकी दारुलहुकूमत वाशिंगटन डीसी के चिड़ियाघर में गुज़िश्ता माह 9 शेरों में कोरोना वायरस का टेस्ट मस्बत आया। खुशकिस्मती से बीमारी से उनमें पैदा हो जाने वाली सानवी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के इलाज के बाद उनका खाना पीना और बर्ताव अब मामूल पर लौट आया है। कोविड का बजाते खुद कोई इलाज नहीं है, इसलिए हमारे यहाँ जानवरों के डॉक्टर्स ने एंटीबायोटिक से इनका इलाज शुरू कर दिया, जिसमें दर्द और मतली खत्म करने के अलावा भूख बढ़ाने की दवाएं भी शामिल थीं। अब तक ये मालूम नहीं हो सका कि इन शेरों को इन्फेक्शन हुआ कैसे। ऐन मुमकिन है हमारे अमले के किसी ऐसे फर्द से जिसमें वायरस की अलामात जाहिर नहीं हुई थी इसे फैला दिया। कोरोना हवा के जरिए फैलने वाला वायरस है, इसलिए मास्क से भी बाहर निकल जाता है। अमेरिका भर के चिड़ियाघरों में बंदरों समेत जानवरों की दूसरी अकसाम में भी कोविड-19 के मस्बत टेस्ट सामने आए हैं। वाशिंगटन डीसी और रियासत मैरीलैंड के शहर बाल्टीमोर के चिड़ियाघरों में बीमारी से मुतासिर हो सकने वाले जानवरों की कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने के लिए एक तजुर्बाती कोविड वैक्सीन देने की तैयारी की जा रही है, जबकि मैरीलैंड के चिड़ियाघर में इस साल के इख्तिताम से पहले मादूमी के खतरे से 2-4 चीतों को कोविड वैक्सीन दी जाएगी। तवक्को है कि ये एक आसान अमल होगा क्योंकि यहाँ पर अमले ने जानवरों को मामूल की बीमारियों के खिलाफ टीके लगवाने की तरबियत दे रखी है। सबसे पहले किसी टहनी से जानवर के जिस्म पर दबाव डाला जाता है, फिर सुई जैसी किसी चीज पर ढक्कन के साथ ऐसा किया जाता है, जिसके बाद उन्हें हकीकी इंजेक्शन लगाया जाएगा। सो बहुत से मरहले हैं जो खुद ब खुद उन्हें इस अमल की तरबियत दे रहे हैं। दवासाज कंपनी जोएटस मुल्क भर के चिड़ियाघरों के लिए अपनी कोविड वैक्सीन की 11,000 से ज्यादा खुराकें अतिया कर रही है। कंपनी के मुताबिक ये वैक्सीन कुत्ते, बिल्लियों और मिंक के लिए महफूज साबित हुई है। ताहम फिलहाल चिड़ियाघर के जानवरों पर इसका तजुर्बा नहीं किया गया, लिहाजा ये कहना मुश्किल है कि ये खास तौर से वायरस की डेल्टा किस्म के खिलाफ किस हद तक और कब तक मौसर साबित होगी। वैक्सीनेशन की 2 खुराकें देने के बाद इनमें कम से कम वायरस लगने का खतरा कम हो जाता है। जिन ग्रुप्स को ये तजर्बाती वैक्सीन दी जाती हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो हमें और अमरीकी महकमा ज़राअत को जानवरों पर इसके असरात के बारे में बताएं।
7 अक्टूबर को रियासत साउथ डकोटा में एक बर्फानी तेंदुआ जिसमें कोविड की अलामात जाहिर हुई थीं हलाक हो गया। पोस्टमार्टम से पता चलेगा कि उसकी मौत की वजह क्या थी। मुल्क भर के चिड़ियाघरों में आने वालों की बड़ी तादाद की वजह से ये सवाल भी सामने आता है कि आया जानवरों में कोविड-19 इन्फेक्शन से आवाम को खतरा हो सकता है या नहीं। शायद नहीं, क्योंकि जानवरों की आबादी कम है तो ये इन्फेक्शन खुद ही खत्म हो जाएगा। मतलब ये कि या तो ये जानवर सेहतयाब हो जाएंगे या मर जाएंगे। इस क्लिनिकल ट्रायल के बाद अगर वैक्सीन ना लगवाने वाले चिड़ियाघरों में इन्फेक्शन सामने आया और लगवाने वाले महफूज रहे तो हमारे पास वैक्सीन के मुअस्सर होने का कुछ सबूत मौजूद होगा। रियासत मैरीलैंड के चिड़ियाघर के अमले को उम्मीद है कि ये वैक्सीन कोविड-19 के खिलाफ इजाफी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी, खुसूसन ऐसे जानवरों के लिए जो पहले ही नस्ल खत्म हो जाने के खतरे की फहरिस्त में शामिल हैं। चिड़ियाघर में किसी जानवर को खो देने का असर जरूर होता है। वो अफजाइश के प्रोग्राम्स और अपनी नस्ली ग्रोथ के लिए अहम है। जाहिर है इसका हम पर बहुत असर पड़ेगा। वेरोनिका इग्लेसियस के साथ आयशा खालिद, वॉइस ऑफ अमेरिका। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस वो टेक्नोलॉजी है जिसमें कंप्यूटर्स दिमाग से भेजे जाने वाले पैगामात या सिग्नल का तज्जिया करते हैं और मफलूज लोगों को लिखने और दूसरे काम करने में मदद देते हैं। ये रिसर्च का एक ऐसा मैदान है जो वुसअत इख्तियार कर रहा है। इसमें हाल ही में एक इंतहाई अहम पेशरफ्त हुई है। आइए देखते हैं कि मफलूज लोगों को सिर्फ जहनी सेहत से लिखने, जहनी ताकत से लिखने और दूसरे काम करने में मदद देने वाली ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। पहली नज़र में ये तहरीर मामूली सी लग सकती है, लेकिन ये मुकम्मल तौर पर सिर्फ सोच के ज़रिए लिखी गई थी। जब हिस्सा लेने वाले शख्स कोई हर्फ या कोई अलामत लिखने का सिर्फ अपने जहन में तसव्वुर कर रहा था, उनके दिमाग में लगाए गए सेंसर्स ने बरक़ी सरगर्मियों के नमूनों को जांचा, जिसके बाद एक एल्गोरिदम ने इसकी तशरीह के लिए एक ख्याली कलम ढूंढा। हमें मालूम हुआ कि आज़ा की नक्ल हरकत को कंट्रोल करने वाले सिग्नल्स फालिज के कई साल बाद भी मौजूद रहते हैं, जो कि वाकई हैरान कुन और गैर मुतवक्को है। साइंसी तहकीक के इदारे ब्रेन गेट से मुंसलिक जेमी हेंडरसन और दूसरे साइंसदान तहरीर करने से मुंसलिक दिमाग के अमल को कामयाबी से समझ चुके हैं। उनका मकसद ऐसे लोगों को दूसरों से राब्ता करने में मदद देना है जो लॉक्ड इन हैं, यानी वो लोग जो अपने जिस्म को हरकत नहीं दे सकते। उनके तजुर्बे में शामिल मरकजी अफराद में से एक ये फायर फाइटर हैं जो कूड़ा बाहर ले जाते हुए गिरकर मफलूज हो गए। ये 1 दिहाई से भी ज्यादा अरसे से मफलूज हैं। वो वाकई हमारी टीम का एक काबिल कदर और अहम रुकन है। एक कामयाब ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस या BCI तख्लीक करना मुताद्दिद रिसर्च ग्रुप्स और टेक्नोलॉजी की फर्म्स की कोशिशों का मरकज़ है। अगरचे इसका वसी पैमाने पर इस्तेमाल शायद अभी बहुत दूर है, लेकिन ये कामयाबियाँ इस जानिब इशारा करती हैं कि किस हद तक टेक्नोलॉजी इंसानी अहलियत को बढ़ाने में मददगार हो सकती है। 5 दिन की मश्क के बाद इस तहकीक के शुरुका 1 मिनट में 90 हरूफ टाइप कर पाए, जो ब्रेन गेट के मुताबिक किसी भी किस्म के BCI के लिए एक नया रिकॉर्ड है। लिहाजा इन कामयाबियों के साथ हमें इस बारे में मजीद मालूम हुआ है कि दिमाग किस तरह हरकत से मुताल्लिक पैगामात पर काम करता है और मुमकिना तौर पर इससे भी ज्यादा बड़ी चीजें जैसे फैसला साजी का काम, जैसे किसी गलती का पता लगाना। ब्रेन इम्प्लांट्स जिस्म के अंदर लगाने पड़ते हैं, ताहम उम्मीद ये है कि मजीद तहकीक के नतीजे में उन लोगों के लिए बेहतर टेक्नोलॉजी मुहैया की जाएगी जिन्हें इसकी वाकई ज़रूरत है। डीना मिचेल के साथ फाइजा बुखारी, वॉइस ऑफ अमेरिका। और इसी पर ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। प्रोग्राम के बारे में फीडबैक देने के लिए आप आ सकते हैं facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर। इसके अलावा ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @urduvoa। अब तक के लिए इतना ही। नीलोफर मुगल को इजाज़त दीजिए।